أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم تقریر نمبر 10 جو ہے اخفا اس کے بارے میں سیکھیں گے. سب سے پہلے ریویژن کر لیتے ہیں ہم نے لاسٹ کلاس میں کیا سیکھا تھا. انشاءاللہ لاسٹ کلاس میں ہم نے تقریر نمبر 9 کے بارے میں سیکھا تھا which is اظہار. جی اظہار کے بارے میں سیکھا تھا. اظہار کا معنی ہے یعنی واٹ از اظہار اس کے بارے میں سیکھا تھا اینڈ حروف حلقی کے بارے میں سیکھا تھا. ریویژن کر لیتے ہیں. حروف حلقی 6 ہیں 6 ہیں. حمزہ ہ عین ح غین خ. ان 6 حرفوں کو حروف حلقی کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ حلق سے نکلنے والے حرف ہیں. حمزہ ہ اقصل حلق یعنی کہ سب سے آخری حصے سے نکلنے والے حرف ہیں. عین ہ درمیانی حصے سے یعنی مڈ تھروٹ سے نکلنے والے حرف وسط الحلق. اینڈ دین لاسٹلی غین خ. ان دونوں کو منہ کی طرف والے حصے سے نکالیں گے جو ہے ادنی الحلق. انشاءاللہ ان کے بارے میں سیکھا تھا. اینڈ وائی دس از امپورٹینٹ ان دس لیسن از بیکاز ہم نے سیکھا تھا کہ اظہار کا قاعدہ کیا ہے. اظہار از نتھنگ بٹ ظاہر کر کر پڑھنا. ظاہر ایز ان ایکسپریس ٹو ایکسپریس. سو ظاہر کر کر پڑھنے کو اظہار کہا جاتا ہے. ہم نے اس کا قاعدہ سیکھا تھا کہ جب بھی تنوین یعنی کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش فتحتین ضمتین کسرتین یا پھر نون ساکن ان دونوں کے بعد حروف حلقی جو 6 ہے حمزہ ہ عین ح غین خ ان 6 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے. کب؟ جب تنوین ہو یا نون ساکن ہو. اس کے بعد یہ 6 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو یہاں پر اظہار کریں گے. سیکھا تھا اظہار کس طرح سے کریں گے. بغیر غنہ کے. غنہ کرنا نہیں ہے یعنی کہ نیزل ساؤنڈ نہیں ہونی چاہیے پڑھتے وقت اینڈ جلدی پڑھیں گے. یہ دیکھا تھا اظہار کا قاعدہ. سو فار ایگزامپل اظہار کا ہم نے یہاں پر مشق بھی دیکھی تھی. سو طیرا ابابیل نار حامیت اس طرح پڑھ رہے تھے نہ کہ نار حامیت اس طرح پڑھنا غلط ہے اس لیے کہ وہاں پر تنوین یعنی ضمتین کے بعد ہا ہے. ہا کون سے حرف میں سے ہے؟ حروف حلقی میں سے ہے. سو the rule of اظہار applies here. تو یہاں پر ہم غنہ کے بغیر جلدی ادا کریں گے. نار حامیت لمن خشی من غیرہ یومئذ علیہا من خطابا من عین آنیت کفوا احد. And then also some more examples یہاں پر دیکھیں. فمن عفی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن عفی من اخیہ من اذن کتاب حکیم عذاب غلیظ حاسد اذا حسد. سو ون مور امپورٹنٹ پوائنٹ میں نے بتایا تھا کہ یہ جو حروف حلقی ہیں اگر درمیان میں حروف کے آ جائے تو وہاں پر اظہار نہیں ہوگا. جب تنوین یا نون ساکن کے بعد آ جائے تب بھی وہاں پر اظہار ہوگا. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. جب بھی آپ درمیان میں دیکھو گے کہ حروف حلقی وہاں پر ہے تو آپ اظہار نہیں کرو گے unless before the حروف کے پہلے وہاں پر تنوین یا پھر نون ساکن آ جائے. تو یہ ہم نے الحمدللہ لاسٹ کلاس میں سیکھا. انشاءاللہ آج کی تختی میں ہم تنوین و نون ساکن کا سیکنڈ قاعدہ which is اخفا
ये सीखेंगे। अच्छा, अभी हमने सीखा था कि इजहार के मानी है जाहिर कर कर पढ़ना, यानी कि एकदम खोल कर यू कैन अंडरस्टैंड। अगर किसी को सुनोगे इजहार पढ़ते वक्त तो आपको पता चल जाए कि यहाँ पर इजहार हो, उतना ओपनली पढ़ रहे थे। इख्फा का मानी क्या है? अच्छा, इख्फा इज नथिंग बट छुपाना, टू हाइड। तो हम इसका रूल भी देखेंगे, किस तरह से छुपाएंगे, किसको छुपाएंगे, कौन से हुर्फ की आवाज को छुपाएंगे, ये भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो इख्फा का मानी है छुपाना, छुपा कर पढ़ने को इख्फा कहा जाता है। रिमेम्बर, डोंट कंफ्यूज इट विथ इजहार। इजहार को जाहिर कर कर पढ़ने को कहा जा रहा था, एंड इख्फा इज नथिंग बट छुपा कर पढ़ने को इख्फा कहा जाता है, टू हाइड। अब जिस तरह हुरूफे हल्के जो इजहार के साथ थे, इसी तरह इख्फा के साथ हुरूफे इख्फा है, विच आर 15। टोटल 15 हुरूफे इख्फा है। वहां पर हुरूफे हल्के 6 थे, हमजा, हा, आइन, हा, गौन, ख। तो यहाँ पर क्या है? हुरूफे इख्फा 15 है, विच आर ता, सा, जीम, दाल, ذال, ज़ा, सीन, शीन, صاد, ضاد, طا، ظا، فا، قاف, काफ। जी, ये हुरूफ 15 है, विच आर कॉल्ड एज हुरूफ इख्फा। इन हुरूफों को हुरूफ इख्फा कहा जाता है। ये जो 15 हुरूफ है, इनको हुरूफ इख्फा कहा जाता है। सो हुरूफ हल्के, रिमेम्बर द प्रीवियस चैप्टर एज वेल, कंपेयर करेंगे। वहां पर हुरूफ हल्के जो इजहार के साथ थे वो सीखे थे, हलक से निकलने वाले हुर्फ जो 6 हैं, हमजा, हा, आइन, हा, गौन, ख। इख्फा में हुरूफ इख्फा होंगे, विच आर 15, एंड दोज आर ता, सा, जीम, दाल, ذال, ज़ा, सीन, शीन, صاد, ضاد, طا، ظا، فا، قاफ, काफ। जी, अभी ये जो इख्फा का रूल है, कायदा है, इसके बारे में सीखते हैं। कहाँ करेंगे इख्फा, किस तरह से करेंगे, एवरीथिंग अबाउट इख्फा इंशाल्लाह अभी सीखते हैं। इख्फा का रूल है, इख्फा कब करेंगे? व्हेन, जब नून या नून साकिन या फिर तनवीन। तनवीन इज नथिंग बट डबल हरकत, फतहतैन, दमतैन, कसरतैन, यानी कि दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। ये तनवीन और नून साकिन एज इन नून के ऊपर जज़म आ जाए, इन दोनों के बाद, नेसेसरली दो भी होना नहीं है, सिर्फ एक हो जाए बस है। नून साकिन के बाद अगर आ जाए या फिर तनवीन के बाद, ये जो हुर्फ है हुरूफ इख्फा जो 15 है, इनमें से कोई भी हुर्फ आ जाए तो वहां पर इख्फा करेंगे। किस तरह इख्फा करेंगे इसके बारे में देखते हैं। इख्फा को इस तरह करेंगे, ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है कि इख्फा यानी कि छुपाना। किसको छुपाएंगे? जो नून की आवाज तनवीन या फिर नून साकिन में होगी उसको छुपाएंगे। कहाँ पर? अपनी नाक में। नून की आवाज जो है नाक में, उसको छुपाकर गुन्ना कर कर पढ़ेंगे। गुन्ना इज नथिंग बट वहां पर थोड़ा टाइम देंगे। अ, अ, यहाँ पर नून की आवाज नहीं आनी चाहिए। अन, इन, इस तरह नहीं होनी चाहिए, यानी कि नून की आवाज जो होगी तनवीन या नून साकिन में, उसको छुपा कर पढ़ेंगे। किस तरह छुपाएंगे? नाक में छुपाकर गुन्ना करते हुए। गुन्ना इज नथिंग बट वहां पर थोड़ा टाइम देंगे, गुन्ना करते हुए पढ़ेंगे। तो ये करने का तरीका इज, जब आप क्या करेंगे, आपकी जुबान की नोक को तालू से हटाकर, जैसे उर्दू में पंखा, ये पंखा में पंखा नहीं पढ़ा जाता, पन इस तरह से नहीं बोला जाता, पंखा, इस तरह से नून को छुपा कर पढ़ेंगे। यूजुअली इख्फा की मिकदार यानी कि उसका टाइमिंग एक अलिफ के बराबर है। जिस तरह से अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, इनको एक अलिफ के बराबर खींचा जा रहा था, इसी तरह इख्फा को भी एक अलिफ के बराबर उतना मिकदार वहां पर नून की आवाज को छुपाना है। ठीक है, इंशाल्लाह मैं ये वापस रिपीट करती हूँ। इख्फा के मानी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इख्फा इज नथिंग बट, ऑलवेज रिमेम्बर, इख्फा का मानी है छुपा कर पढ़ना, नाक में छुपाना, हाइड करना।
तो ये जो इख्फा है, इख्फा में हुरूफ इख्फा होंगे which are 15. There are 15 हुरूफ इख्फा. تا, ثا, جيم, دال, ذال, ذا, سين, شين, صاد, ضاد, طا, ظا, فا, قاف, काफ. ये जो हुर्फ है तनवीन यानी दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश या फिर नून साकिन, नून पर जज़म आ जाए, इसके बाद ये जो 15 हुर्फ है इनमें से कोई भी हुर्फ आ जाए तो वो वहां पर हम इख्फा का रूल अप्लाई करेंगे. व्हाट इज इख्फा का रूल क्या है? आप है जो नून की आवाज जो है वहां पर तनवीन हो या नून साकिन हो, नून की आवाज है उसको छुपा कर पढ़ेंगे. कहाँ छुपाएंगे? नाक में छुपाकर पढ़ेंगे. गुन्ना करते हुए, गुन्ना नथिंग बट थोड़ा टाइम देंगे वहां पर. कितना? एक अलिफ की मिकदार टाइम देकर इंशाल्लाह अदा करेंगे. अच्छा, अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे तो अभी वाज़ेह हो जाएगा आपको किस तरह पढ़ेंगे इंशाल्लाह. तो लेट अस सी द एग्जांपल्स. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. أنت منذر أنت منذر أنت منذر كراما كاتبين كراما كاتبين كراما كاتبين. See the difference. अभी हम इजहार को, अगर यहाँ पर इजहार होता, assume ये इजहार हो, अंता मुंजिरु इस तरह पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है? इख्फा है यानी नून साकिन. यहाँ पर as you can see नून साकिन है and then after नून साकिन ता है. If you see here इन हुर्फों में से ता है, हुरूफ इख्फा में ता मौजूद है. सो यहाँ पर नून साकिन के बाद ता है, इसलिए इख्फा का रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे विच इज नून की आवाज को नाक में छुपाकर गुन्ने के साथ पढ़ेंगे. इसकी मिकदार एक अलिफ है, यानी कि एक अलिफ की मिकदार हम नाक में आवाज को नून की छुपाएंगे. एंड देन अगेन यहाँ पर और एक मर्तबा इख्फा हो रहा है, नून साकिन है एंड देन आफ्टर दैट ज़ाल है. इफ यू सी हियर ज़ाल भी हुरूफ इख्फा में का एक हुर्फ है. तो यहाँ पर क्या होगा? इख्फा होगा यहाँ पर भी. यहाँ पर नून की आवाज को नाक में छुपाकर गुन्ने के साथ पढ़ेंगे. सो एज आई सेड इन द प्रीवियस लेसन, हमेशा जब भी आप तन्वीन या फिर नून साकिन देखोगे तो मेक श्योर टू सी द नेक्स्ट लेटर. नेक्स्ट आप तन्वीन या फिर नून साकिन के बाद कौन सा वहां पर हुरूफ है. सो सीइंग दैट जो हुरूफ वहां पर होगा वो देखकर हम उसके रूल अप्लाई करेंगे. अभी यहाँ पर अगर इजहार का हुर्फ होता यानी हल्की होता, हुर्फ हल्के में से कोई हुर्फ होता तो वहां पर इजहार करना पड़ता. यहाँ पर क्या है? हुर्फ इख्फा में का हुर्फ है तो यहाँ पर इख्फा करना है. इजहार में क्या आवाज को जाहिर करके जल्दी पढ़ना था, लेकिन यहाँ पर इख्फा में क्या है? नाक की आवाज को छुपाकर, फिर नाक में आवाज को नून की छुपाकर एंड देन एक अलिफ के बराबर वहां पर टाइम देना है. तो मेक श्योर टू सी व्हेनेवर यू सी तनवीन या फिर नून साकिन नेक्स्ट हुर्फ कौन सा है. लेट अस कंटिन्यू. أنت منذر كراما كاتبين كنت ترابا كنت ترابا كنت ترابا يتيما فآوى يتيما فآوى من دخله من دخله
من دخله رسول كريم رسول كريم رسول كريم نارا ذات نارا ذات نارا ذات كتاب فيه كتاب فيه كتاب فيه من ثقلت من ثقلت من ثقلت يوم ينفخ يوم ينفخ يوم ينفخ من طغى من طغى من طغى أنزلنا 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 شيء قدير شيء قدير شيء قدير فتح قريب فتح قريب فتح قريب जी अल्हम्दुलिल्लाह we are done with the examples. अभी यहाँ पर कायदे देखते हैं किस तरह से हम हुरूफ के कायदे बोलेंगे. तो फर्स्टली तमूज़िर इसका देखते हैं. यहाँ पर सुकून है तो सुकून को पिछले वाले हरकत से मिलाकर पढ़ेंगे. एंड देन यहाँ पर नून साकिन है. सो एज आई सेड नून साकिन या तनवीन जब भी आ जाए नेक्स्ट हुरूफ देखेंगे. तो नून साकिन के बाद यहाँ पर ता है. ता इज हुरूफ इख्फा में से. ता एक हुरूफ इख्फा में का हुर्फ है. तो यहाँ पर इख्फा का रूल अप्लाई करेंगे. नून की आवाज को नाक में छिपाकर गुन्ने के साथ पढ़ेंगे. इसको इख्फा कहा जाता है. इख्फा की मिकदार यानी कि टाइम वहाँ का एक अलिफ के बराबर होगा. एंड देन ता के ऊपर फतहा है. हरकत में से है जल्दी पढ़ेंगे खींचेंगे नहीं. ये जो ता है मुतहर्रिक है. एंड देन मीम के ऊपर दम्मा है. हरकत में से जल्दी पढ़ेंगे. एंड देन नून साकिन साकिन वाले हुर्फ को पिछले वाले हरकत से मिलाकर पढ़ेंगे. एंड देन नून साकिन which is very important. remember नून साकिन के बाद वाला हुर्फ देखेंगे. नून साकिन के बाद यहाँ पर वैल है which is part of हुर्फ इख्फा. हुर्फ इख्फा में का एक हुर्फ है. तो यहाँ पर नून की आवाज को नाक में छिपाकर गुन्ने के साथ पढ़ेंगे. इसको इख्फा कहा जाता है. इख्फा की मिकदार यानी कि टाइम 1 अलिफ एक अलिफ के बराबर है. एंड देन वैल के नीचे कसरा है. हरकत में से जल्दी पढ़ेंगे खींचेंगे नहीं. एंड देन रॉ के ऊपर दम्मा है. हरकत में से जल्दी पढ़ेंगे थोड़ा बिना खींचेंगे. वैल और रॉ ये दो भी मुतहर्रिक है. Now let us take one example of तनवीन here. यहाँ काफ है. काफ के नीचे कसरा है. हरकत में से जल्दी पढ़े थोड़ा बिना खींचेंगे.
काफ मुतहर्रिक है। एंड देन अलिफ से पहले यहाँ पर फतहा है। अलिफ से पहले फतहा हो तो क्या होगा? तख्ती नंबर 4 में हमने सीखा था कि अलिफ मद्दा होगा। इसको एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर अदा करेंगे। एंड देन यहाँ पर मीम पर तनवीन है। एंड ऑल्सो रिमेम्बर, तनवीन जब भी आ जाए तो तनवीन का बाद वाला हम देखेंगे। तनवीन के बाद काफ है यहाँ पर। काफ इज पार्ट ऑफ हुर्फ इख्फा। हुर्फ इख्फा में से काफ है, तो यहाँ पर जो तनवीन में नून की आवाज होगी इसको नाक में छुपाकर पढ़ेंगे। एंड देन अलिफ से पहले जबर है, अलिफ मद्दा होगा एक अलिफ के बराबर यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ताकि नीचे कसरा है, हरकत है, जल्दी पढ़ेंगे, खींचेंगे नहीं। या साकिन से पहले जेर है तो या मद्दा होगा। यहाँ पर तख्ती नंबर 4 में सीखा था एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। एंड देन लास्टली नून पर यहाँ पर फतहा है, हरकत में से है, जल्दी पढ़ेंगे, खींचेंगे नहीं। सो लेट अस रिवाइज, हमने आज की तख्ती में क्या सीखा था। सो तख्ती नंबर 10 इज इख्फा। इख्फा के मायनी है छुपाकर पढ़ना, छुपाना, इसको इख्फा कहा जाता है। हुर्फ इख्फा 15 है, 15 है। ता सा जीम दाल ज़ा ज़ा सीन शीन स्वाद ज़ाद तो व फा क़ाफ काफ। ये 15 हुर्फ इख्फा कहा जाएगा इनको। एंड देन द रूल इज, कायदा है कि तनवीन और नून साकिन के बाद जब भी ये 15 हुर्फों में यानी कि हुर्फ इख्फा में से कोई भी हुर्फ आ जाए तो वहां पर जो नून की आवाज होगी उसको नाक में छुपाकर गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। इसको इख्फा कहा जाता है। इख्फा की मिकदार यानी कि उसका टाइम एक अलिफ के बराबर होगा, यानी कि 2 काउंट्स 2 हरकत के बराबर होगा। एंड दिस इज प्रोनाउंस्ड, इख्फा इस तरह करेंगे, पंखा जिस तरह से उर्दू में कहा जाता है पंखा, इस तरह से पन का नहीं बोलते, नून की आवाज नहीं आती। तो दैट इज एग्जैक्टली हाउ यू विल प्रोनाउंस इख्फा एज वेल, लेकिन इख्फा को ज्यादा टाइम देंगे। तमुदिरु, इस तरह से। So hopefully you have understood today's lesson. This is ये remember रखिए कि ये जो हम पढ़ रहे हैं इजहार और इख्फा, ये 2 तनवीन और नून साकिन के कायदे हैं। जो इजहार था तनवीन और नून साकिन का फर्स्ट कायदा था। Why? Because हमने उसके बारे में सीखा था कि तनवीन और नून साकिन के बाद कोई हुर्फ आना है, वो जो था हुर्फ हल्की था। तो जब भी तनवीन और नून साकिन के बारे में होगा वो तनवीन और नून साकिन के कायदे होंगे। तो the izhar was the first one and now this is the second one. ये second कायदा है तनवीन और नून साकिन का। This is all for today's class. अच्छे से रिवाइज करिए and practice करिए इंशाल्लाह। इख्फा is sometimes difficult to pronounce at first, लेकिन आप सीख लोगे इंशाल्लाह। तो दुआ पढ़ लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह